Namaskar. My name is Vinay Kumar, and I again welcome you all in my next lecture of the development of Indian Constitution, Bharatiya Samvidhan. Students, as you know that we are discussing a very important topic, that is the Indian Council Act 1909. And in our previous sessions, we have discussed, what was the objective of Indian Council Act, those factor causes which led to Indian Council Act 1909. And we have gone through the entire, I would say, the act or reforms in detail. We have also discussed the outcomes of, I would say that what were the outcomes or consequences or result of the Indian Council Act 1909. Especially in today's session, I will be discussing about the features or major characteristics of Indian Council Act 1909. क्या विशेषताएं थी 1909 के एक्ट की, we will discuss about that. And I would say that this act is also known as, I would say, Minto Marlow, मिंटो मार्लो या मार्ले मिंटो सुधार कह लीजिएगा, या मार्ले मिंटो रिफॉर्म कह लीजिएगा, या भारतीय अधिनियम परिषद आप कह लीजिए। इस एक्ट को यानी कि तीन चार नामों से जाना जाता है। सो प्लीज you are supposed to know that what are the various name of this act as far as Indian Council Act 1909 is concerned. So please allow me to start today's session, and I would request you to please pay attention to my words, to those contents which are being shared by me on a screen. And if you think that there is any problem, any difficulties, or I would say that any the concept which is not clear yet, please get in touch with me. I'll help you out in this regard. Well, as you know that Morley Minto reforms, formerly known as the Indian Council Act of 1909, were a set of constitutional reforms introduced by the British government in India, named after John Morley, the Secretary of State for India, and the uh, Gilbert Elliot Murray Kinmount. आप कह सकते हो उसमें, हालांकि पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। And fourth Earl of Minto, the Viceroy of India. These reforms aimed to address the growing demand for greater Indian participation in governance. सीधी सी बात पहले जान लीजिएगा कि जैसे कि आपको पता है कि उस दौरान थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं आपको व्हाट इज ऑल अबाउट। कभी भी कोई इफ यू स्टार्ट द नए नए कंसेप्ट और न्यू थियरी और एनीथिंग, तो प्लीज वी आर सपोज टू नो कि वी आर सपोज टू नो इन ब्रीफ कि व्हाट वाज इट ऑल अबाउट। तो इस चीज को भूलेगा मत वेन एवर वी टॉक अबाउट द पार्लियामेंट्री एक्ट 1909। दो चीज इसमें याद रखिएगा। फर्स्ट, उस समय जो वायसराय थे वो थे मिंटो, लॉर्ड मिंटो, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो थे लॉर्ड मार्ले। तो बेसिकली जो ये एक्ट है, इसलिए इसको नाम ये भी दे दिया गया कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म या मार्ले मिंटो एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, तो ये दो नाम हैं। कभी कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एक ही नाम है। तो इस एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मार्ले। तो प्लीज कीप you are supposed to keep this fact in your mind कि हाँ, when we talk about the Marley Minto Act, so it means that we are talking about the two person, two authorities, two British, I would say, personality. One was the governor, sorry, one was the, I would say, that is state of, I would say, representative of the state, yeah, secretary of the state, and the second one was the Viceroy of India. I'll go ahead. I'll move further and I'll discuss about the features or characteristics. Major characteristics we will discuss. Basically, the reasons I would say that behind today's topic, whenever we talk about the reason or features or characteristics, basically it makes the concept clear for us, for all of us. और थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है कि मतलब हमारे दिमाग में ये देखिए, बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, if you know the major or characteristics, chief characteristics or salient features of any particular act or movement, तो उससे उससे क्या होता है कि हमारी जो नॉलेज है वो स्टेबल होती है, और किसी भी एक्ट या मूवमेंट के बारे में या किसी भी इंसिडेंट के बारे में इजीली हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन दैट आई एम टॉकिंग या गोइंग टू डिस्कस अबाउट की फीचर्स, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो ये इट वाज द वन ऑफ द मेजर फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की जो 1909 का एक्ट था, इसके अंतर्गत जो प्रोविंशियल लेवल या मैं कहूँ सेंट्रल लेवल पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एक्सपेंड किया गया। ये आप भूलिएगा मत, मैंने आपको बड़े
विस्तार से और बड़े अच्छे से समझाया था कि जब हमने बात करी थी किस तरीके से 1852 का जो एक्ट आया था उसमें प्रोविजन दिया गया। फिर देन दे हैव कम विद 1861 एक्ट, उसमें इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ाए गए। नॉन ऑफिशियल जो रिप्रेजेंटेटिव थे या गवर्नमेंट के जो नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव थे इंडियंस थे उनकी संख्या बढ़ाई गई। फिर हमने बात करी थी 1892 के एक्ट में, तो उसमें और संख्या बढ़ा दी गई 40% जो इनका कह लीजिएगा कि कंट्रीब्यूशन या 40% इंडियन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और फिर बात हुई 1909 की, जो हम बात कर रहे हैं मार्लियामेंट एक्ट या मार्लियामेंट रिफॉर्म और इंडियन काउंसिल एक्ट की। उसके अंतर्गत इसका और एक्सपेंड किया गया, इसमें और संख्या में वृद्धि की गई और प्रोविंशियल लेवल पर सेंट्रल लेवल पर दोनों पे ही नंबर ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव बढ़ाए गए। नाउ as far as the second feature or characteristics is concerned, that is the provincial legislative council. ठीक है, तो सिमिलरली एक्सपेंशन नॉट इट वाज नॉट इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, आई वुड से दैट एक्सपेंशन वाज आल्सो एट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो प्रांतीय स्तर पर जो विधान परिषद थी वहां पर भी जो भारतीय रिप्रेजेंटेटिव या इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी सहभागिता को सुनिश्चित किया गया, उनकी संख्या बढ़ाई गई। नाउ इंक्लूजन ऑफ इंडियंस, एज आई सेड अर्लियर कि दे हैव स्टार्टेड इंक्लूडिंग द इंडियन पीपल। थोड़ा सा ये रियलाइज कराना चाहते थे इंडियन को, भारतीयों को, कि ब्रिटिश सरकार उनके साथ है और उनका उनको उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित करती है, उनको भी साथ में लेके चलती है, उनका फेवर चाहती है। बट ऐसा कुछ नहीं था, ये तो केवल इसलिए था जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, नो उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उनसे इन्होंने ब्रिटिश लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, सबक लिया। और सीधी सी बात है 1857 का जो रिवोल्ट था उसने ब्रिटिश भारत की जड़ तक हिला दी थी। तो इसी तरह से वो एक्ट के बाद एक्ट लेकर आ रहे थे और कुछ ना कुछ रिफॉर्म करते रहे। वो दे केप्ट ऑन रिफॉर्मिंग, दे केप्ट ऑन इम्प्रूविंग, दे केप्ट ऑन इंक्लूडिंग, दे केप्ट ऑन रिवाइजिंग द स्ट्रेटेजीज जस्ट टू मेक श्योर कि देयर इज नो इंसिडेंट लाइक 1857 जो हुआ था। इट वाज द फर्स्ट, आई वुड से, मेजर रिवोल्ट which have been, I would say, which have been initiated by the Indian people. So, inclusion of Indians elected members. For the first time, a significant number of Indians were included as elected members in both the central and provincial legislative councils. तो पहली बात ये आप जान लीजिएगा, फॉर द फर्स्ट टाइम अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियंस वर इंक्लूडेड एज इलेक्टेड मेंबर्स इन बोथ द सेंट्रल। तो जो हमारे सेंट्रल या केंद्रीय लेवल पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की मैं बात करूं, प्रोविंशियल लेवल पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात हम करें, वहां पर कुछ भारतीयों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया, उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया गया, या दे हैव गिवन अपॉर्चुनिटी टू इंडियंस टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ, केवल इसलिए कि हाँ भाई जो बेसिकली जो ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों के साथ कंधे के कंधा मिला के चलती है और उनको भी अपने जो है डिसीजन मेकिंग पावर में, निर्णय लेने में उनको इंक्लूड कर रही है। तो दिस वाज all about that. Then we come to the next feature, which is representation of various interests. So states were allocated to represent various interests such as landlords, business communities, universities and chambers of commerce. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो वेरियस इंटरेस्ट थे उसकी मैं बात करूं, बेसिकली लोकल लेवल पे मैंने आपको पहले ही बताया, प्रांतीय स्तर पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में वृद्धि करी गई, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन लोगों ने रिप्रेजेंट करना चालू करा, उनके प्रतिनिधित्व को चालू करा। जैसे कि I would say कि state were allocated to represent various interests such as landlords, business communities, universities and chambers of commerce। तो ये भी बॉडीज थी जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही थी थ्रू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स लेवल या प्रांतीय जो विधान परिषद के स्तर पर, या आप कह सकते हो लोकल लेवल पर। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये मैं आपको बात कल बता ही चुका हूँ। दिस इज आल्सो अ मेजर फीचर ऑफ Indian Council Act 1909, which talks about the separate electorates, especially for Muslims। सीधी सी बात है, अब उन लोगों ने डिमांड करी थी कि चूंकि अल्पसंख्यकों की बात हो रही थी, कुछ इस दृष्टि से भी देखा गया जो माइनॉरिटीज हैं, उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं है, उनको थोड़ा सा उनकी जो स्थिति है, जो पोजीशन है, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए सोसाइटी में। तो हुआ क्या था कि 1906 में, मैंने आपको पहले भी बताया था, थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजों को, डेट्स को, नाम को कई बार रिपीट करता हूँ अपने लेक्चर में। स्टूडेंट्स का फायदा ये होता है कि मैं फिर बता चुका हूँ कि कभी भी इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हालांकि सारे एग्जामिनेशन जो है एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, और अगर आप मेरी बात को या किसी भी टीचर की बात को ध्यान से सुनते हो या मैं कुछ रिपीट करता हूँ और अगर आपने उसको ध्यान से सुना, तो इवन 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा और यू विल बी गिवन 4 ऑप्शन, तो ऑटोमेटिकली जो आपका हाथ है राइट ऑप्शन की तरफ चला जाएगा। आप
टिक कर दोगे क्योंकि आपने उस बात को ध्यान से सुना था और मैं आपको बता चुका हूँ उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है, फैक्टर है कि जो भी आप ध्यान से सुनते हो आपके अचेतन मन में यानी कि अनकॉन्शियस माइंड में जाके दमित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और फिर जब उससे मिलती जुलती चीज आती है तो फिर अगेन ऑटोमेटिकली जो अनकॉन्शियस माइंड में चीजें स्टोर्ड है वो आपकी कॉन्शियस माइंड में आ जाता है। दिस इज द प्रोसेस हाउ यू नो इट वर्क्स। और मैं फिर वही चीज कहूंगा कि आपको लगता होगा कि कई बार मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ, सीधी सी बात है, मैं ये नहीं देखता कि मैं टॉपिक से डेविएट हो गया, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट चीज शुड बी शेयर्ड बाय मी और मैं उसको अब तक कन्वे करता हूँ। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, 1906 में 1906 में क्या हुआ था, आगा खां के नेतृत्व में एक बॉडी कमेटी तैयार होती है और वो शिमला पहुंचकर लॉर्ड मिंटो से मिलती है और बोलती है कि हम अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के लिए हमें अलग से रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उनके अलग से रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, हम अलग से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि अलग से निर्वाचन मंडल होगा ताकि इनको थोड़ा सा आई वुड से दैट इनकी पहचान और आइडेंटिटी और सपोर्ट मिले ब्रिटिश सरकार की तरफ से। द मोस्ट नोटेबल फीचर्स वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट electorates electorate sorry for Muslims. This meant that Muslims could elect their own representatives, ensuring their political interests were safeguarded. सीधी सी बात है, I'll once go through all the lines. The most notable feature was the introduction of separate electorates for Muslims. This meant that Muslims could elect their own representatives, ensuring their political interests were safeguarded. सीधी सी बात है, ये मैं आपको बात बता रहा था, उनको लगा कि उनके जो अधिकार है उसको थोड़ा सेफ गार्ड किया जा सके, वो अलग से अपने प्रतिनिधि को चुन सके, उनके उनको पैसे से राइट्स होने चाहिए। एंड देयरफॉर वी कैन से दैट it was a major feature, or I would say the characteristics of 1909 Act, Indian Council Act, or you can say that I would say that Marley Minto reform. Now, as far as the next characteristics or future is concerned, that is the political implications. So, this move was seen as a way to divide the nationalist movement by creating separate communal electorates, which later had significant political consequences. तो अगर हम इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन की बात करें तो सीधी सी बात है, जरूर इस चीज को बूस्ट मिला कि दिस मूव वाज सीन एज अ वे टू डिवाइड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। बेसिकली आपको पहले ही पता है कि अंग्रेजों की ये बहुत बड़ी मंशा थी कि वो हमेशा फूट डालो राजनीति की चाल चलते थे और उनका ये प्रयास रहता था कि जो इंडियंस है ये यूनाइट ना हो पाए, इनमें यूनिटी ना हो। इन्होंने भी इस चीज को थोड़ा सा अपना कंसेंट दिया ताकि उनको पता था कि इससे क्या होगा, हिंदू और मुस्लिम में आपस में मतभेद कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे और एक दूसरे के विरुद्ध होगी, क्योंकि यूनिटी जहां पर होगी तो उसका घाटा उस चीज का जो कह लीजिएगा कॉन्सिक्वेंसेस ब्रिटिश को झेलने पड़ेंगे। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, ब्रिटिश के लिए थोड़ा सा सही था, क्योंकि वो थोड़ा सा इस चीज को प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अगर इनमें आपस में फूट होगा तो फिर वो आपस में स्वाधीनता संग्राम की बात नहीं करेंगे, आजादी की बात करना छोड़ देंगे। तो पॉलिटिकली देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ब्रिटिश सरकार को इस चीज से फायदा होने वाला था। दैट्स व्हाई दे हैव given their consent. Now legislative powers. If I talk about the legislative powers, it is the special heading which talks about the characteristics or feature of 1909 Act. I have already discussed with you that limited legislative powers, थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा, हालांकि यहाँ थोड़ा नेगेटिविटी में हम लोग जा रहे हैं। पावर दी गई, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया, इंडियंस को इन्वॉल्व किया गया, लेकिन वो सभी खाना फोड़ती थी, सुपरफिशियल था। उनकी जो मेजर डिसीजन हुआ करते थे, जो मेजर आई वुड से स्ट्रेटेजीज होती थी, उसमें उनकी बात को इंक्लूड नहीं किया जाता था। जो भी बात वो रखते थे, अल्टीमेट जो डिसीजन मेकिंग पावर था वो ब्रिटिश पीपल का ही था। ये केवल एक एडवाइजरी बॉडी रहकर चलेगी, केवल अपनी बात रखते थे, एक सलाह रखते थे, या कह लीजिए बस मेजर डिसीजंस दोज वर बीइंग टेकन बाय द ब्रिटिश। तो ये बात तो आप पहले से जानते हैं कि वो केवल दिखावे के लिए, यू नो भारतीय जनता के बीच में एक तरह का र्यूमर क्रिएट करने के लिए, या मैं कहूँ कि उनको रियलाइज कराने के लिए, डिसेमिनेट करने के लिए कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं और हम आपके फेवर की बात करें, बट इट वाज नॉट लाइक दैट एट ऑल। जो इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एक्सपेंड किया, उसमें जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे उसका केवल एडवाइजरी रोल था, उनको सीरियसली नहीं लिया जाता था। इस चीज को ध्यान रखना, मेरे कहने का मतलब ये है। Debates and discussions. So members could discuss budget and address questions to the executive, but they had no real power to enact law independently. तो सीधी सी बात है, स्टूडेंट्स, जहां तक हम डिबेट और डिस्कशन की बात करें, दे यूज टू बी पार्ट ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन, बट अगेन इट वाज जस्ट सुपरफिशियल, एक दिखावा था, आडंबर था, क्योंकि इसका कोई रियल इम्पैक्ट या पावर जो थी वो उनके हाथ में नहीं थी, उनके डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। केवल दिखाने के लिए एक एडवाइजरी बॉडी के वर्क में काम के रूप में वो काम कर रहे थे।
इंडियन रिप्रेजेंटेटिव कि भारतीय को लगता था कि वो ब्रिटिश सरकार का या ब्रिटिश गवर्नेंस का हिस्सा है, तो थोड़ा सा सैग्रीगल ये है कि वो उनके साथ चल रहे हैं। उनको दे हैव नॉट बीन, आई वुड से दे हैव नॉट बीन डिस्कार्डेड बाय ब्रिटिश। इस तरह की कुछ फीलिंग को लेकर, उनकी मंशा को लेकर उन्होंने इस एक्ट में कुछ प्रोविजंस बनाए थे। So I have also gone through these characteristics. Now next one is, if I talk about the criticism and impact. See, whenever we talk about the characteristics, so criticism and impact can also be included. So criticism की बात हम करें तो limited reforms. So critic argued that the reform did not go far enough in providing self-governance and were merely a tactic to placate growing nationalist sentiments. सीधी सी बात है, ये केवल अगर मैं बात करूं कि जो रिफॉर्म करे गए 1909 की अगर हम बात करें या मार्लियामेंटो रिफॉर्म की बात करें, इसमें जो भी प्रोविजन थे, जो भी रिफॉर्म लाया, वो केवल एक दिखावा था, एक आडंबर था। और कोई एक तरीके से कह लीजिएगा कि इट वाज मियरली ए टैक्टिक टू पैलेकेट, मतलब हिंदी में इसका मतलब समझ लीजिएगा, केवल जो आपको मैंने बताया था कि 1885 में जो कांग्रेस फॉर्म हुई थी, कांग्रेस सरकार, तो 1905 के बाद, बंगाल विभाजन के बाद, वो दो फड़ में बढ़ गई। एक तो थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट और दूसरे थे हमारे मॉडरेट लीडर्स, यानी कि गरम दल के नेता और नरम दल के नेता में बढ़ गई, या गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। अब ब्रिटिश की चाल क्या थी कि इनको एक हाथ में झुंझुना लॉलीपॉप दे दी जाए और उनको बोले कि हम इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को इंक्लूड करेंगे अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेवल पर। बट ये केवल दिखावा था, इसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अगर मैं बोलूं मेजरली, इसका कोई इंडियन गवर्नमेंट को बेनिफिट नहीं हुआ। वो तो केवल एक्सट्रीमिस्ट को दबाने के लिए और मॉडरेट लीडर के साथ मिलकर ये प्रोविजंस लेके आए थे 1909 के एक्ट में, ताकि जैसे मैंने आपको बताया था, जो मॉडल लीडर्स थे वो ये सोचते थे कि हम ब्रिटिश सरकार के सामने अगर हम अपनी बात रखेंगे एक प्रॉपर तरीके से, तो उनको सुना जाएगा, तवज्जो दिया जाएगा। ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन ब्रिटिश ने एक चाल चली कि वो मॉडरेट लीडर को थोड़ा सपोर्ट करते थे, या कुछ उनकी जो यू नो कार्य प्रणाली थी, उसमें उनका उनकी उनकी पोजीशन उन्होंने अपॉइंट की, दे हैव बीन असाइन्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बट ये तो केवल इसलिए था कि ताकि जो आवाज उठ रही थी देश में स्वाधीनता की, आजादी की, उसको दबाया जा सके। ओके, नाउ कम्युनल डिवाइड, if I talk about the communal divide, so the introduction of separate electorates was criticized for fostering divisions among different religious communities. तो जैसा कि मैंने बताया था कि 1906 में जो आगा खां के नेतृत्व में कमेटी तैयार करी गई और जो रिप्रेजेंटेटिव ये जो बॉडी जाती है और शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिलती है, उस पर कंसेंट दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये इट आई वुड से दैट लेड टू कम्युनल डिवाइडेशन। और ये बात अंग्रेजों को पता थी कि अंत में अगर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स या मतभेद होंगे, तो इसका अल्टीमेटली फायदा ब्रिटिश को ही होने वाला है। तो ये थोड़ा सा देखा गया, हालांकि उस समय उनको ये चीज का अंदाजा नहीं था। वो तो जस्ट अपने अलग से निर्वाचक मंडल या अलग से इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे, ताकि वो मुसलमान इस्लाम या मुस्लिम लोगों को रिप्रेजेंट कर पाए। Let's see about the impact. Political awakening. Despite their limitations, the reforms led to a greater political awakening among Indians and set the stage for further demands for self-governance. फाउंडेशन फॉर फ्यूचर रिफॉर्म्स, देखिए पहला इसको हेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं, पॉलिटिकल अवेकनिंग। अवेकनिंग कितनी बड़ी बात बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर है कि सीधे सीधे कहीं ना कहीं इस एक्ट ने इंडियन या भारतीय जनता की आंख खोल दी, क्योंकि उनको लगा कि केवल हाथ में लॉलीपॉप झुंझुना थमा रहे हैं, बेसिकली कुछ एक्चुअल में उनके हाथ में कुछ आ ही नहीं रहा है, दे आर नॉट गेटिंग बेनिफिटेड। और डिस्पाइट देयर लिमिटेशंस, देयर रिफॉर्म्स लेड टू अ ग्रेटर पॉलिटिकल अवेकनिंग। ठीक है, लिमिटेशंस था, कुछ ऐसे प्रोविजंस भी थे जो इंडिया के हित की बात करें, भारतीय के फेवर में बात करें, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं भारतीय को रियलाइज कराया, उनको ये आभास कराया, उनको रियलाइजेशन हुआ, उन्होंने जाना कि अब हमें और ज्यादा अपनी आवाज उठानी पड़ेगी और अपने सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड करनी पड़ेगी, स्वाधीनता की बात करनी पड़ेगी, यू नो और अपने पावर, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, उसमें अपनी मुख्य भूमिका की बात भी रखनी पड़ेगी। तो उन्होंने और जो है ज्यादा इस चीज पर ध्यान देना चालू करा। और कहते हैं कि समथिंग कुछ ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ चीजें आंखें खोल देती, तो वही बात इस सेट के साथ भी थी। अब भारतीयों को अच्छी तरीके से पता लग चुका था कि हाँ, जो ब्रिटिश सरकार है वो केवल अपने फेवर की बात कर रही है, वो तो बस शासन कर रही है, उसको जो इंडियन से भारतीय जनता है उनसे उनका कोई कंसर्न नहीं है, या उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को उनका वो दे नेवर एंश्योर। वो तो केवल रूल कर रहे हैं, और 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो, उनको यू नो अ, कह सकते हो विरोध का सामना ना झेलना पड़े, या भारतीय एक ना हो जाए। इस चीज से बचने के लिए जितने भी एक्ट वो लेकर आए थे, थोड़ा बहुत वो लॉलीपॉप इंडियंस के या भारतीयों को थमाते रहे, ये इसका सार है। फाउंडेशन फॉर फ्यूचर रिफॉर्म्स,
The Minto reforms laid the groundwork for subsequent constitutional reforms, including the Monte-Chelmsford reforms on 1999, 1919, 1919, uh, यस 1919 इसमें जलियांवाला बाग कांड भी हुआ था। मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा 1919 में या 1919 में। और बहुत मेजर इंसिडेंट्स थी हमारे इतिहास की, विच टुक प्लेस इन पंजाब, अमृतसर, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो सीधी सी बात है बच्चों, वेन एवर वी टॉक अबाउट एनी एक्ट और एनी मूवमेंट, तो कहीं ना कहीं जो भी उसका जो परिणाम होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, रिजल्ट होता है, तो उससे कुछ फ्यूचर को बेटर बनाने में या फ्यूचर स्ट्रेटेजीज को रिफॉर्म करने में नो डाउट वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, और वही हुआ था। तो 1909 के अंतर्गत जो ये मांटे मरलो या कह लीजिए रिफॉर्म, या 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ने भी या इसके थ्रू या इसके कारण भी जो ब्रिटिश सरकार ने ग्राउंड वर्क तैयार किया फ्यूचर रिफॉर्म्स के लिए, फ्यूचर रिफॉर्म्स के लिए। और जैसा कि मैंने बताया था कि जब हम बात करें 1858, देन 1861, 1892 या 1892, और आई विल टॉक अबाउट द 1909 एक्ट। तो इस इन सारे एक्ट में दे केप्ट ऑन रिफॉर्मिंग द थिंग्स, दे केप्ट ऑन इंप्रूविंग द थिंग्स, दे केप्ट ऑन रिवाइजिंग द स्टडीज। तो सेम वे इधर भी 1909 का जो एक्ट था, इन्होंने ब्रिटिश सरकार को, गवर्नमेंट को ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो जो है आने वाले जो अधिनियम या एक्ट पर के लिए वो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी तैयार कर सके। जैसे यहाँ पर 1919 का एक्ट की बात हुई है यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात हुई है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स दोनों 1919 और 1935 के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी, आई वुड से, features or characteristics of the major Indian Council Act, which was 1909. Yeah, it is also known as the Monte-Mirlo Reform, Monte-Mirlo Act 1909, or Bharatiya Adhiniam Parishad 1909. So this was all about the special characteristics of this act, and I hope you would have enjoyed the entire session. And the content was, really very much important. And this way we come to the end of today's session, or I would say that thank you very much for being the valuable part of today's session. Uh, in next session, I'll bring some new topic, for you people, and we'll discuss regarding that. Or till then, please, I would say that take care of yourself and keep studying, keep concentrating, keep doing hard work, and till then, bye bye, see you. सभी का धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, प्रणाम।